students, welcome to Behria Model School, PNAD Maripur Secondary Wing. I hope you all are fine. I am Shazia Amin, your chemistry teacher, going to conduct your 12th lecture. So we started our chapter number 5, chemical bonding. So today we are going to discuss its last topic, intermolecular forces and its types. So what are our learning objectives? To differentiate between intermolecular forces and intramolecular forces, to understand types of intermolecular forces. So students, basically there are two types of forces among the atoms or molecules, intramolecular forces and intermolecular forces. What are intramolecular forces? These are the forces which holds the atoms together in a molecule. You can see here the molecule of water, which consists of one oxygen atom and two hydrogen atoms, and all the three atoms combine with each other through a covalent bond. Okay, so this covalent bond which holds these atoms together is the intramolecular forces. ठीक है, and what is intermolecular forces? अब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से कैसे अटैच है? Because when water is in the form of liquid, so all the water molecules are close to each other, and when it is converted into a solid, then the molecules again even come close to each other and becomes a solid. So what is the force between the molecules which holds them together? That is the intermolecular forces. ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है. कैसे अट्रैक्ट कर रहा है कि एक का पॉजिटिव पार्ट दूसरे के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है. सो ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्स है वो क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर. ठीक है, अब एक पूरा मॉलिक्यूल दूसरे पूरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, सो डैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. You can see also in this example HCl which consists of hydrogen and chlorine. क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. सो ये दोनों एटम्स एक दूसरे से कैसे ज्वाइन हुए हैं? थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड. सो दिस फोर्स विच होल्ड्स देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. अब एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, एक का नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, और ये फोर्स जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ के रख रही है, that is called as intermolecular force or intermolecular attraction. It is not a bond, it's just a attraction, so it is represented by dot lines. So it is weak forces. Intermolecular forces are weaker than the intramolecular forces because this is a bond, but it is not a bond, it is just a force of attraction between the opposite poles. So जैसे ही मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाती है. सो इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स. So this intermolecular forces also called as van der Waals forces because it was studied or discovered by scientist van der Waals. So there are three types of attractive forces between the molecules: dispersion forces, dipole-dipole forces, and hydrogen bonding. So what are dispersion forces? Dispersion forces also called as London or van der Waals forces because it was first identified or studied by Fritz London, so also called as London forces. So these are the dispersion forces or intermolecular forces due to the constant motion of electrons. ठीक है, ये वो forces हैं जो किसकी वजह से क्रिएट होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से क्रिएट होती हैं, and will cause temporary concentration of charge on one side of an atom or molecule. So dispersion forces are experienced by every atom, ion और molecule. हर atom, ion और molecule जो है वो dispersion forces को experience करता है जब दो atoms, दो ions या दो molecules जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं. ठीक है, for example you can see the example of neon. Neon is a noble gas, और जितने भी ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल गैसेस कह रहे हैं वो रिएक्शन शो नहीं करते बिकॉज दे आर स्टेबल. बट
and these are gases, but these gases can be compressed into a liquid. और कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं? लिक्विड में क्या होता है, एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. सो वो कौन सी फोर्स है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है? दैट इज़ द डिस्पर्जन फोर्सेस. बिकॉज व्हेन एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, these electrons which carry negative charge repel each other. ठीक है, न्यून के जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस. सो व्हेन दीज एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर. ठीक है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स पुश होते होते एक के इलेक्ट्रॉन्स बैक पे चले जाते हैं और एक के इलेक्ट्रॉन्स फ्रंट पे आ जाते हैं. सो टेम्पररी तौर पे, आर्जी तौर पे 2 पोल्स बन जाते हैं. ठीक है, सो एक का पॉजिटिव पार्ट और एक का नेगेटिव पार्ट जो है वो फ्रंट पे आ जाता है. दैट इज गिव्स राइज टू इंड्यूस और टेम्पररी डाइपोल्स एंड रिजल्ट अ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस कोल्ड डिस्पर्जन फोर्सेस. ठीक है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो ये दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. ठीक है, और गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस इज़ द टेम्पोररी डाइपोल्स. जैसे ही ये एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनकी जो पोलैरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज टेम्पोररी डाइपोल्स. सिमिलरली यू कैन सी हियर डिस्पर्जन फोर्सेस कि कैसे जैसे 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं. ठीक है, चाहे आयन है या न्यूट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक के इलेक्ट्रॉन्स पुश होके बैक पे चले जाते हैं और एक के फ्रंट पर आ जाते हैं. तो एक का पॉजिटिव चार्ज यानी जो न्यूक्लियस है उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव. तो न्यूक्लियस फ्रंट पे आ जाता है और एक के इलेक्ट्रॉन्स फ्रंट पे आ जाते हैं. सो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जो दोनों एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है. बट दिस इज़ अ वेरी वीकेस्ट फोर्सेस. सिमिलरली यू कैन सी द हीलियम ऑफ ग्रुप 8 एलिमेंट किसी से रिएक्ट नहीं करता, बट व्हेन वी लिक्विफाई द हीलियम गैस द एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर. और जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो इनके दरमियान क्रिएट होती हैं जो इनको आपस में जोड़ के रखती हैं. ठीक है, जैसे ही एक दूसरे से दूर जाते हैं ये फोर्सेस ख़त्म हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज टेम्पोरली डिस्पर्जन फोर्सेस. सो हाउ कैन वी डिफाइन द लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस? द वीकेस्ट फोर्सेस between the opposite ends of temporary dipoles are called London dispersion forces or dipole induced dipole forces. नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल फोर्सेस. एज द नेम सेड, द फोर्सेस बिटवीन डाइपोल एंड डाइपोल. ठीक है, डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो हर तरह का मॉलिक्यूल और आयन और एटम, चाहे वो न्यूट्रल है या पोलर है, हर तरह का आयन और मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करता है जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं. लेकिन जैसे ही दूर जाते हैं ये इतनी वीक फोर्सेस होती हैं कि ये ख़त्म हो जाती हैं. लेकिन डाइपोल फोर्सेस हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं. सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज एटम्स और अपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. यू कैन सी द एग्जांपल. HCl इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल. सो नेगेटिव पार्ट ऑफ HCl attract the positive part of another molecule of HCl. So this force of attraction which keep these molecules together is called as dipole forces. You can see another example कि इतने सारे जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक का नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, सो अ बैलेंस अट्रैक्शन एंड रिपल्जन holding the molecules together. So that is called dipole interaction. ठीक है, ये भी dipoles और ये भी dipoles. तो इन dipoles के दरमियान जो इंट्रैक्शन है, जो फोर्सेस है जो इनको आपस में जोड़ के रख रही है, that is called dipole interactions. So only polar molecules experience dipole forces. Dipole forces are stronger than London और dispersion forces. ठीक है, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं
but are still only 1% as strong as covalent or ionic bonds, because these are only the forces. इसलिए जो है कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है, सिर्फ 1% इनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्गनेस होती है. सो द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस इंक्रीजेस. इनकी स्ट्रेंथ कब इंक्रीज होती है डायपोल डायपोल फोर्सेस की? बाय इंक्रीजिंग पोलैरिटी. जितना ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उतनी ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग होंगी. एंड बाय डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी डायपोल डायपोल फोर्सेस. और जैसे ही मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे ये फोर्सेस भी वीक होती चली जाएंगी. लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, इन तीनों में से लंडन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन. ओके, because hydrogen bond forms when hydrogen combine with high electronegative element. ठीक है, जब एक हाइड्रोजन एटम किसी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और हमें पता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? नॉन मेटल्स की होती है. सो जब किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, देन इट फॉर्म अ पोलर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और जो दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यानी पोलर मॉलिक्यूल बनाता है हाइड्रोजन. सो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू सी द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, दैट वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिकॉज हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. अब एक वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिससे पूरा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब रहते हैं. सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहला रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. So this is a strong bond, so the name is given as bonding. ठीक है, otherwise it's not a bond, it's only a force of attraction, but due to its strongness it is called as hydrogen bonding. Similarly NH3 में भी क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है. जो जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं डेट्स मीन उसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सो इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अमोनिया, एक अमोनिया गैस का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली हाइड्रोजन फ्लोराइड है. सो दीज बॉन्ड्स बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्जन एंड डायपोल डायपोल फोर्सेस. ठीक है, यहाँ भी देखें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ही हो रहा है. इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बट चूंकि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है सो डैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं? डायपोल डायपोल और डिस्पर्जन फोर्सेस से. सिमिलरली सब्सटेंसेस दैट कैन हाइड्रोजन बॉन्ड विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स. जिन सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है. सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट नियरली एज स्ट्रॉन्ग एज केमिकल बॉन्ड्स. लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी केमिकल बॉन्ड के मुकाबले में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बिकॉज दीज आर नॉट अ बॉन्डिंग. बार बार आपको बताया जा रहा है दीज आर ओनली द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं. दीज आर नॉट अ बॉन्ड. ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा. ठीक है, सिर्फ एक का पॉजिटिव पार्ट दूसरे के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रख रहा है. जैसे ही मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं ये फोर्सेस वीक हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ होती है कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में वो 2 to 5% होती है. ठीक है, आपकी बुक में 5 to 10% लिखा है. सो इससे ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ नहीं होती. सो डैट्स इनफ फॉर टुडे. आपका होम टास्क क्या है कि आपने लेक्चर को रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो याद करने हैं. और ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 जो है सॉल्व भी करना है और कॉपीज़ में भी लिखना है. थैंक यू सो मच.